یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ اس شخص کی ہے جس نے اپنی دولت کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ یہ کہانی ہے قارون کی۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ وہ رشتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بظاہر اس نے دین حق بھی قبول کر لیا تھا، وہ نمازیں پڑھتا، تورات کی تلاوت کرتا، لیکن یہ سب محض ایک لبادہ تھا۔ وہ ایک کمزور عقیدے کا ریاکار انسان تھا جس کا مقصد صرف لوگوں کی نظروں میں نیک بننا تھا تاکہ وہ ان کے بھروسے کا سودا کر سکے۔ اس کا اصل مذہب خدا نہیں، دولت تھا۔ اللہ نے اسے اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا بھی ایک طاقتور جماعت کے لیے مشکل تھا۔ اسے اپنی اس دولت پر بڑا فخر تھا۔ اے مالک دولت، آج آپ کے خزانے میں مزید 3 صندوق بھر گئے ہیں۔ مصر سے لے کر شام تک کوئی آپ جیسا امیر نہیں۔ امیر؟ صرف امیر مت کہو، بادشاہ کہو۔ یہ دولت، یہ سونا، یہ چمک، یہ سب میری ہے۔ بے شک لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ آپ کی محنت ہے۔ اللہ کی دین ہرگز نہیں، یہ مجھے میرے علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ مجھے کیمیا کا علم ہے۔ اب میں نے مٹی کو سونا بنانا سیکھا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی احسان نہیں۔ وہ غریب کسانوں کی فصلیں پیشگی اور کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیتا اور پھر مجبوری کے وقت انہیں منہ مانگے داموں فروخت کرتا۔ ناپ تول میں دھوکے، سود خوری اور بے انصافی، اس نے دولت اکٹھی کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ اللہ نے اسے اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی اس حرام اور ظلم کی کمائی سے اس نے اپنے لیے دنیا ہی میں جنت کھڑی کر لی۔ وہ خدا پرست نہیں، دولت پرست تھا۔ اس نے ایسے محل تعمیر کروائے جن کے در و دیوار سونے اور ہیروں سے دمکتے تھے۔ اس کا تکبر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کے استبل میں بندھے جانوروں کے زیورات بھی سونے اور جواہرات کے تھے۔ وہ اپنی دولت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اس حرام اور ظلم کی کمائی سے اس نے اپنے لیے دنیا ہی میں جنت کھڑی کر لی۔ اس کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں۔ وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا اور ان سے بدترین سلوک کرتا۔ اس کی فرعونیت کا عالم یہ تھا کہ وہ غریبوں کو مجبور کرتا کہ اس کے سامنے مٹی میں گر پڑیں اور اس کے قدموں کو چومیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تکبر اور ظلم کی یہ عمارت بہت جلد زمین بوس ہونے والی ہے۔ اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت اسے ہر عذاب سے بچا لے گی۔ اے قارون، یہ تمام باغات، یہ سونے کے ڈھیر، یہ سب مال و دولت کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے تم نے؟ کیوں خدا کی مخلوق پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ کبھی سوچا ہے کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ غریبوں اور ناداروں کی مدد کے لیے تمہارے قدم کیوں نہیں اٹھتے؟ خاموش رہو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے سوال کرے۔ یہ میری دولت ہے، میں جیسے چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے؟ تم عقل کی بات کرتے ہو؟ تم اس لیے اتنے امیر ہو کیونکہ تم نے ان غریب مزدوروں کا حق مارا ہے۔ مجھے یہ بے فائدہ نصیحتیں کرنا بند کرو۔ میں تم سب سے بہت بہتر ہوں اور میرا ایمان تم سب سے زیادہ پختہ ہے۔ جاؤ، اپنا کام کرو اور صرف اپنی فکر کرو۔ اسے اپنی اس دولت پر بڑا فخر تھا۔ جب دولت کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا تو مال کی محبت اور شدید بخل نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے رب کے احکامات سے کھلی بغاوت کر بیٹھا۔ ایک دن قارون اپنے عالیشان محل سے باہر نکلا۔ اس کی شان و شوکت اور مال و دولت کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ لوگ قارون کے گھوڑے کے قریب آتے ہیں اور عقیدت سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔
कितना खुश नसीब है कारून, कितनी बेपन्नाह सरुवत का मालिक है। कितनी शानदार जिंदगी है इसकी, कितना सादतमंद और खुशबख्त है। काश हम भी कारून की तरह होते। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों इसके सामने जमीन पर गिर रहे हो? याद रखो, सादत और खुशबख्ती सिर्फ मालो दौलत में नहीं होती। लेकिन देखो तो इसके पास क्या कुछ नहीं है। एक जालिम इंसान का इतना एहतराम, ये इस लायक नहीं है। उसने ये सारी दौलत गरीबों का खून चूस कर और बेइंसाफी से कमाई है। सच्चा सआदतमंद वो है जो खुदा पर ईमान लाए, अल्लाह की मखलूक की मदद करे और लोगों के हुकूक न मारे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दौलतमंदों से मुआशरे के गरीबों का हक यानी ज़कात वसूल की जाए। ऐ लोगो जिन्हें अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह का हुक्म है कि तुम सब अपनी दौलत में से ज़कात अदा करो। कारून, तुम पर भी लाजिम है कि दूसरों की तरह अपने माल की ज़कात अदा करो। ज़कात? ये ज़कात क्या है? किस दलील से मैं अपनी खून पसीने की कमाई और दौलत दूसरों को दे दूं? कारून, ज़कात का मतलब है तेरी उस बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों और नादारों को दिया जाए ताकि वो भी इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। ऐ मूसा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ज़कात क्या है? क्या हमने तुम पर ईमान लाकर कोई बुरा काम किया है? और अब तुम हमसे खराज और टैक्स भी मांग रहे हो? अगर ये लोग तेरी मदद ना करते तो हरगिज इतनी दौलत नहीं कमा सकता था। तू उन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा, बल्कि उनकी मेहनत का हक उन्हें ज़कात के नाम से वापस कर रहा है। ऐ कारून, मैं ये ज़कात अपने ज़ाती फायदे के लिए नहीं मांग रहा। ये अल्लाह का हुक्म है ताकि मुआशरे में कोई मोहताज और फकीर न रहे। अगर तू वाकई खुदा पर ईमान रखता है और मुझे खुदा का पैगंबर मानता है तो अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दे। याद रख, बगैर ज़कात के तेरी नमाजों का कोई फायदा नहीं। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत की कोई परवाह ना की। उसका गुरूर इस हद तक बढ़ गया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खुली दुश्मनी पर उतर आया कि वो अल्लाह के नबी को रुस्वा करने की साजिशें बनने लगा। ये 1000 सुर्ख अशराफियां, ये हैरे जौहरात और ये बेकीमत रेशमी पोशक, ये सब तुम्हारा हो सकता है। इतनी दौलत? इसके बदले मुझे क्या करना होगा? बस एक छोटा सा काम। काल भारे मजमे में तुम्हें मूसा पर बदकारी का इल्जाम लगाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऊंचे मेंबर पर तशरीफ फरमा है। उनके गिर्द बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा मजमा खामोशी और अकीदत से उनका वाज सुन रहा है। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह के अहकामात पर अमल करो, हलाल को अपनाओ और हराम से बचो। और याद रखो, जो शख्स अपने माल में से अल्लाह के नाम पर ज़कात अदा नहीं करेगा तो अल्लाह उसे अपने सख्त अजाब में गिरफ्तार कर लेगा और उस माल का एक एक हिसाब लेगा। अचानक हुजूम में सरगोशियां होने लगती हैं। मजमा चीरते हुए कारून इंतहाई तकब्बुर के साथ आगे आता है। उसके पीछे वही औरत जिसे उसने रिश्वत दी थी सर झुकाए चल रही है। कारून सीधा मेंबर के करीब आकर खड़ा हो जाता है। ए मूसा, तुम लोगों को हलाल और हराम के बड़े दर्स दे रहे हो। जरा ये तो बताओ कि अगर तुम खुद बदकारी करो तो तुम्हारी क्या सजा है? पूरे मजमा में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लोग हैरत से कारून की इस गुस्ताखी को देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी खौफ के जलाल के साथ फरमाते हैं, अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है। अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझ पर भी मौत की सजा वाजिब है। तो फिर सुन लो ए लोगो, मूसा ने खुद ये गुनाह किया है और मेरे पास इस बात की गवाह मौजूद है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं अल्लाह के अजाब से डरती हूँ। ए लोगो, ये नेक मर्द हजरत मूसा बिल्कुल पाक हैं। जो कुछ कारून कह रहा है वो सरासर झूठ और बोहतान है।
उसने मुझे दौलत की लालच देकर ये झूठा इल्जाम लगाने के लिए खरीदा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस कदर अंगेज और संगीन झूठे इल्जाम को सुनकर शदीद सदमे और जलाल की कैफियत में आ जाते हैं। वो अचानक गिश बेहोशी खाकर मेंबर से नीचे गिर पड़ते हैं। उनकी आंखों में शदीद गुस्सा और जलाल है। वो उठ खड़े होते हैं और सीधा कारून की आंखों में देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक लहजे में बोलते हैं, ऐ कारून, तुम झूठ और तोहमत लगाने से बाज आ जाओ। अब भी वक्त है, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो। मैं हरगिज तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल उरूज पर पहुंच जाता है। वो अपना मशहूर असा लाठी पूरी ताकत से जमीन पर मारते हैं। एक जबरदस्त जलजला आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जमीन, इस सरकश को अपने अंदर दबा ले। जमीन फौरन फटती है और कारून अपने टखनों तक जमीन के अंदर धंस जाता है। उसके मुहाफिज और हवारी खौफ से पीछे हट जाते हैं। ऐ मूसा, मुझे बचा लीजिए, मुझ पर रहम करें, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ देखकर दोबारा हुक्म देते हैं, ऐ जमीन, इसे रानों तक दबा ले। जमीन मजीद सरकती है और कारून घुटनों और रानों तक धंस जाता है। फिर एक और झटके में वो गले तक जमीन में धंस जाता है। सिर्फ उसका सर बाहर रह जाता है। कारून अभी भी खबासत में गले तक धंसे हुए चीखता है, ऐ मूसा, मैं जानता हूं तुम्हारी नजर मेरी दौलत पर है। तुम ये सब मेरा माल और खजाना छीनने के लिए कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बदबख्ती पर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और जमीन को हुक्म देते हैं, ऐ जमीन, इसके सारे माल और खजानों को भी अपने अंदर दबा ले। एक जबरदस्त जलजला आता है कि कारून का सारा खजाना, सोना, जवाहरात जमीन में धंसने लगते हैं। फिर एक आखिरी चीख के साथ कारून मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर गायब हो जाता है और जमीन यूं बंद हो जाती है जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। देखा तुमने, अगर अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेता और हमें भी कारून जैसा बना देता तो आज हमें भी जमीन में धंसा देता। सच है, अल्लाह जिसका रिस्क चाहता है कशादा करता है और जिसका चाहता है तंग करता है। याद रखो, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की चादर है। जो उसे खींचने की कोशिश करेगा वो इसी तरह मिटाया जाएगा। असली दौलत वो है जो दिल में सुकून और आखिरत में निजात दे। और यूं तकब्बुर और दौलत का पहाड़ कारून अपने खजानों समेत जमीन का रिस्क बन गया। बेशक इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और तकब्बुर का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। कारून चला गया, मगर उसकी कहानी कयामत तक आने वाले लोगों के लिए निशानी बन गई। दौलत बुरी नहीं, मगर दौलत का नशा बुरा है।